we are starting with the characteristics or features of management. These are the points which I am going to explain to you all with examples. If you like the video, please hit the like button. The very first point is management is a goal oriented process. See, when management starts, when there is certain goals or objective fixed. Okay, like I have given you one example in my previous class that when you want to go to school, you know that next morning you have to go to school. So what you do, you pack your bag according to the timetable. Yes, you keep your uniform and your shoes, socks, everything ready so that you can go your school in the morning and you reach the school on time. Okay, why you have done certain prior preparation, why you had managed your work so that you can reach to your school on time. Okay, that was your target. In the same way, management also has certain goals and objective, like for example to increase their sales, to earn profit. So they perform these functions, these 5 functions of management, which I have discussed with you in my previous lecture also. That was planning, organizing, staffing, directing and controlling. These 5 functions of management is performed when certain goals and objectives are to be achieved. Let's say, let's take an example. Suppose the top level management has given a target to the production department to produce 10,000 goods within 10 days. Top level management has given a target of producing 10,000 goods within 10 days. Now the production management has a goal. Now the production department has a goal of producing 10,000 goods within 10 days. So what production management will do? Production department will do. What they will do? They will plan. They will make the plan accordingly so that they can achieve their objective. Okay. So this is clear that management starts when there is certain goals and objective fixed. The second point is management is pervasive. You know that management is done by big organization, small organization, okay, profit organization, non-profit organization, by you, by me, by your parents, everyone do manage their work. Okay, that's why a management has a nature of pervasive. Management is pervasive. That's why it's told that management is pervasive. Suppose you are doing a business in USA, America or anywhere in the world, you have to follow this deliberate process of management. ओके ऐसा नहीं कि अगर आपने यूएस में बिजनेस कर रहे हो तो आपको वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे भी करना पड़ेगा और इसी तरीके से करना पड़ेगा. यही 5 फंक्शंस आपको फॉलो करने हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मैनेजमेंट इज परवेसिव. Then the third point is management is continuous process. Management is continuous process. Okay, management never ends. जैसे आपने टारगेट फिक्स कर दिया, then you have done planning accordingly, then आपने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, then you have done staffing function, directing, controlling. कंट्रोलिंग में क्या करते हो आप? कंट्रोलिंग में आप लूप होल्स ढूंढते हो कि वेयर वी आर लैकिंग. अगर हमने ऑब्जेक्टिव में हम कहाँ लैक कर रहे हैं, उसके बाद हम जब वो लूप होल्स निकाल लेते हैं, उसके बाद अगेन वी मेक अनदर प्लान. ठीक है, ऐसे करते हैं. उसके इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट नेवर एंड. जैसे एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट को एवरी मंथ टारगेट मिलता है ना सेल्स का. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी गुड्स प्रोड्यूस करने का टारगेट एवरी मंथ मिलता रहता है. ऐसा नहीं कि एक बार गुड्स प्रोड्यूस कर दिया तो गुड्स प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है ना. कंपनी ने एक साल प्रॉफिट कमा लिया तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट ईयर वो प्रॉफिट कमाना नहीं चाहेगी. नेक्स्ट ईयर का भी उसका अलग ऑब्जेक्टिव होगा, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव होगा और उसके अकॉर्डिंग फिर ये फंक्शंस, मैनेजमेंट के फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट नेवर एंड्स. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. Management is multi-dimensional. Management has to perform 3 types of activities. It has to, as a manager, you have to manage the work of the organization, you have to manage people working in that organization, and you also have to manage the operation. See, management of work. आप एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहे हो तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट वर्क इज टू बी परफॉर्म. जैसे आपका हॉस्पिटल है, फॉर एग्जांपल यू आर रनिंग अ हॉस्पिटल, सो आपका वर्क क्या होगा वहाँ पे? प्रोवाइड
गुड क्वालिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटी. इफ यू आर रनिंग अ स्कूल, तो आपका वहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा कि टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. अगर आप कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपका वहाँ पे टारगेट होगा गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रीजनेबल रेट. ये सारा आपका क्या है, वर्क है, ये आपका मेन वर्क है. अब ये वर्क को करने के लिए आप क्या करते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज करते हो और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करते हो. देन कम्स द मैनेजमेंट ऑफ पीपल. व्हाट अंडर a manager under management of people has to manage people working in a group as well as individual. मीन्स देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें सारे लोग ग्रुप में काम करते हैं, तभी हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होता है. तो एज अ मैनेजर ये इस ग्रुप को भी हैंडल करना होता है मैनेजर को, और साथ में इस ग्रुप में काम करने वाले एवरी इंडिविजुअल के कुछ इंडिविजुअल नीड्स होते हैं. सपोज आपका टीम है, टीम में 10 मेंबर्स है, तो 10 मेंबर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे. तो एज अ मैनेजर आपको उनके साथ डील करना होता है. लेकिन ये 10 मेंबर्स के इंडिविजुअल नीड्स भी होंगे, जैसे इनको टाइम टू टाइम सैलरी चाहिए होगी, मॉनेटरी बेनिफिट्स चाहिए होंगे, सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए होगा, अप्रेजल चाहिए होगा. ये सारे इनके पर्सनल नीड्स है ना. तो मैं एज अ मैनेजर को ग्रुप प्लस इंडिविजुअल के नीड्स दोनों को साथ में लेकर के चलना होता है, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स को सेटिस्फाई कर सके. नेक्स्ट कम द ऑपरेशन फोकस ऑन प्रोडक्शन साइकिल. मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन फोकस ऑन प्रोडक्शन साइकिल में क्या होता है, इनपुट्स लेते हैं हम. इनपुट्स मीन्स रॉ मटेरियल, किसी कहीं और से हमारा रॉ मटेरियल हम अरेंज करते हैं. उसके बाद वी कन्वर्ट दैट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में क्या आता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल. हमारा ऑब्जेक्टिव प्लस हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज, ये दोनों मिलकर के काम करते हैं. और देखो, ह्यूमन रिसोर्सेज का जो होता है ना, रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ह्यूमन रिसोर्सेज का रोल क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है. क्यों इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कितनी भी अच्छी रिसोर्सेज को लेकर आओ, कितनी भी अच्छे रॉ मटेरियल को लेकर आओ, लेकिन अगर आपके स्टाफ डेडिकेटेड नहीं है तो काम कैसे होगा, है ना. तो हमेशा एक मैनेजर का फोकस क्या होता है कि वो हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को हमेशा सेटिस्फाइड रखे, खुश रखे. ओके, नेक्स्ट कम द मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. यस, ऊपर भी हमने ये वाले एग्जांपल में भी देख लिया कि फ्रॉम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट टिल द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एवरी डिपार्टमेंट वर्क्स टुगेदर. एवरी डिपार्टमेंट एम इज टू अचीव द टारगेट फिक्स्ड. ठीक है, अल्टीमेट गोल जो होता है ग्रोथ का गोल होता है. अल्टीमेट गोल क्या होता है, इंक्रीज इन प्रॉफिट. तो सब लोग मिलकर के यही प्रॉफिट को अचीव करने के लिए काम करते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. और मैनेजर अकेले तो सारा वर्क कर नहीं सकता. अलोन मैनेजर कैन नॉट परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, ऑल द वर्क, है ना. He require n number of people to perform various types of work. That's why it is said that management is a group act. Comes the management is a dynamic function. Management is a dynamic function. देखो, बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो चेंज होता रहता है. दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. जैसे बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज होगा, जैसे हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर का एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों चेंज होते हैं, तो उसके हिसाब से मैनेजर को क्या करना होता है, अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में चेंजेस करने होते हैं. जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपकी. और आपने क्या कर दिया था, दिस ईयर का टारगेट फिक्स कर दिया था. कुछ आपने टारगेट फिक्स कर दिया कि इस दिस ईयर वी विल अचीव दिस मच सेल, XYZ सेल्स टारगेट आपने अपना फिक्स कर दिया. लेकिन इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, मार्केट में रिसेशन है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो लोग आपकी कार कैसे खरीदेंगे. अब क्या हो गया, आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है. तो आप क्या करोगे, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, आपके पास ये है कि आप आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल्स है, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो. अब आपकी जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज जो है उसको चेंज कर सकते हो. इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस करने होते हैं. नेक्स्ट का मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल. जैसे अकाउंट्स में होता है गुडविल, यू कैन नॉट सी गुडविल, है ना. इन द सेम वे मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, it can be felt when a company is performing very well, when the staff of that company is very happy
for for working with that company. Okay, when the customers are getting good quality of product, when the shareholders are getting proper dividend, okay, a company has a good corporate image in the market, तो उससे आप analyze कर सकते हो कि yes, this company is working very well because this company's management functions are performed very well. इस company का मैनेजमेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से किया गया है, इसीलिए कंपनी आज मार्केट में इतनी आगे बढ़ी है. ठीक है, तो मैनेजमेंट, इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल बिकॉज वी कैन नॉट सी, वी कैन जस्ट फील its presence, we can just feel its presence. Okay, these were the points discussed. Now we will do one case study based on this topic.